गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? बढ़िया ना। चलो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। चैप्टर 9 चल रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन, और हमने ऑलरेडी बात कर ली है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की, और 2 एग्जाम्पल भी किए हैं। एक एग्जाम्पल मैंने होमवर्क में दिया था। ओके, आज के लेक्चर में हम काम करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 18 और एक्सरसाइज 9.5 को भी शुरू करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 18। सो दैट द फैमिली ऑफ कर्व्स फॉर विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप दैट मींस dy by dx, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो हम इसको क्या बोलेंगे, dy by dx at any point xy on it is x plus y square upon 2xy is given by x square minus y square is equal to cx। तो जो टेंजेंट है वो क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज x square plus y square upon 2xy। ओके, देखो यहाँ पे हियर slope of tangent is equal to dy by dx equal to x square plus y square upon 2xy। ओके, तो ये हमारा टेंजेंट है, तो उसको सॉल्व करके हमें जो कर्व मिलेगा वो कर्व होगा x square minus y square is equal to cx। ये हमें प्रूव करना है। चलो स्टार्ट करता हूं मैं। हियर dy by dx इज इक्वल टू, बहुत ही सिंपल सम है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइड बाय 2xy इज इक्वल टू, नाउ डिवाइड बाय x स्क्वायर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, क्योंकि यहाँ पे जो भी टर्म है उसकी डिग्री 2 है, तो x स्क्वायर से डिवाइड करता हूं तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस y square upon x square, that means y upon x whole square। See in denominator 2 as it is, 1 time x cancel, y upon x, this is result number 1। Now we assume that y upon x is equal to v। okay, ये मेथड हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो सपोज y upon x equal to v, therefore y is equal to x upon v। Now taking derivative both side, derivative of y is dy upon dx is equal to derivative of x is 1 at that time, second function as it is, now x as it is, and derivative of v which is dv by dx। Now put all these value in equation number 1, that is put y upon x is equal to v and dy by dx is equal to v plus x into dv by dx। Now see here, therefore 1 implies dy by dx is equal to v plus x into dv by dx equal to 1 plus y upon x whole square, that means 1 plus v square, in denominator 2v। ओके, अब यहाँ पे 2 नए वेरिएबल है, एक ही नया वेरिएबल वैसे v और दूसरा वेरिएबल है x। अब यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल मेथड, मतलब 2 वेरिएबल x और v दोनों को सेपरेट करना है, बाद में इंटीग्रेशन। ओके, चलो देखते हैं। v को ऑपोजिट साइड पे ले जाता हूं, तो यहाँ पे हो जाएगा x इंटू dv by dx इज इक्वल टू 1 plus v square in denominator 2v minus। ओके, चलो देखो यहाँ पे, और ये जो इंटीग्रेशन है वो भी बहुत ही ज्यादा इजी है। चलो, तो यहाँ पे x इंटू dv by dx एज इट इज, x इंटू dv by dx इज इक्वल टू 2v multiply with minus v square, then here 1 plus v square minus 2v square divide by 2v।
then we get here x into dv by dx is equal to 1 minus v square upon 2v. Now minus common from numerator, then we get here minus v square minus 1 divided by 2v. और यहाँ पे dv है तो सारी जितनी भी v वाली टर्म है वो इस साइड पे आएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2v अपॉन v स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस dx in numerator x in denominator and integration. Now integration of 1 upon x, where is the log modulus of x, and integration of 2v upon v square minus. See here, derivative of denominator, that is 2v already in numerator. Then which formula? F dash x upon fx, then log modulus of fx. Log modulus of fx v square minus 1 is equal to log modulus of x plus c1. ओके, इज इक्वल टू c1. बहुत ही इजी सम है ये, देख लो यहाँ पे, इसको मैं log c1 भी लिख सकता हूं, log मॉड्यूलस ऑफ c. अब जहां पे v है वहां पे मैं y अपन x रखने वाला हूं, तो पुट v इज इक्वल टू y अपन x. Therefore log v square, that is y upon x square, means y square upon x square minus 1 equal to, see here I use property of logarithmic function, log m minus log n, that is log m upon n. Okay, now here we take LCM, then log modulus of y square minus x square upon x square is equal to log modulus of c1 upon x. Now remove both side log function. ओके, log फंक्शन को दोनों साइड से निकाल देता हूं, तो यहां पे क्या हो जाएगा y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c1 अपन x. See here, from both side x cancel, this x take opposite, then we get y square minus x square is equal to c1 into x. Now multiply by minus 1 both side, तो यहाँ पे माइनस 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस c1 into x और माइनस c1, दैट मींस प्लस c, सम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू cx. जो हमें चाहिए था वो मिल गया, which is the family of Gauss, which is equation of family of Gauss. ओके, तो ये सम हमारा खत्म हो चुका है. अभी हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 में. ओके, एक्सरसाइज 9.5. तो एक्सरसाइज 9.5 का पहला मैं सम लूंगा दूसरे नंबर, और बाद में हम कैलकुलेट करेंगे पहले नंबर का सम. 9.5 सम नंबर 2. और कौन सा सम है, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं y डैश इज इक्वल x प्लस वाई अपन एक्स. हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है y डैश इज इक्वल टू x प्लस वाई अपन एक्स. बहुत ही इजी है. तो यहां पे क्या करना है, तो यहां पे पहले हमें प्रूव करना है given a differential equation is homogeneous and then solve this differential equation. तो पहले हम क्या बताएंगे कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो फंक्शन है उसको बताना पड़ेगा कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है विद डिग्री 0 डिग्री वाला होमोजीनियस फंक्शन है. तो मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस हो जाएगा. देखो यहाँ पे हियर y डैश मतलब dy by dx is equal to x plus y अपन y से दिस इज f of x y.
नाउ आई पुट x as lambda x and y as lambda y. x की जगह पे lambda y और y की जगह पे lambda y को रख देता हूं, तो फंक्शन हमारा f of lambda x, f of lambda y is equal to, now put x as lambda x, y that means lambda y, in denominator lambda y, from numerator and denominator, lambda common and cancel, then we get here x plus y divided by y, that means lambda raised to 0, f of xy. Okay, मतलब क्या, f of xy is homogeneous difference, homogeneous equation with 0 degree. Okay, therefore f of xy is homogeneous function with 0 degree. Therefore given differential equation is homogeneous differential equation. ओके, तो ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस हो गया, तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब बात करनी है उसके सॉल्यूशन की, देखो कैसे। नाउ फर्स्ट आई राइट डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज dy by dx is equal to x plus y divided by y. नाउ सी न्यूमेरेटर, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, इस सभी जगह पे थोड़ी गलती कर दी मैंने, यहाँ पे लैम्बडा x, यहाँ पे भी x ही आएगा, यहाँ पे भी बच्चों x है। क्या थोड़ी गलती हो गई, x प्लस y डिवाइड बाय x। तो अब न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर देता हूं, तो यहाँ पे न्यूमेरेटर में हो जाएगा 1 प्लस y अपन x, डिनोमिनेटर में तो 1 ही रहेगा, मतलब हमारे पास क्या रहेगा dy by dx सिंपल is equal to 1 plus y upon x. Say this is our first result, and we know what is now, take y upon x is equal to v. Now we assume, okay, suppose v is equal to y upon x, that means y is equal to x into v. Now taking a derivative both side, derivative of y which is dy by dx is equal to derivative of x is 1, b as it is, plus now x as it is, derivative of b with respect to x, that is dy by dx. Now I put all this value in equation number 1. Okay, जो 1 है वहां पे dy by dx और y upon x दोनों की वैल्यू यहाँ पे रखने वाला हूं, तो क्या होगा देखते हैं। Therefore 1 implies dy by dx, that is v plus x into dv by dx, v plus x into dv by dx equal to 1 plus v. See, from both side v cancel, तो अब हमारे पास क्या रहेगा, x into dv by dx is equal to 1. Okay, now dx take opposite, then dv is equal to dx upon x. Now taking integration both side, and here integration dv is equal to integration dx by x, and we know the integration of dv which is x, integration of 1 upon x, that is log modulus of x plus some arbitrary constant c. Now last I put v is equal to y upon x. Okay, put v is equal to y upon x, then we get y upon x is equal to log modulus of x plus c. Now x take opposite, then we get final answer y is equal to x into log modulus of x plus c into x, which is our general solution. Therefore which is जनरल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे भी हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है वो प्रूव किया है, और बाद में
जनरल सॉल्यूशन की बात की। अभी हम करने वाले हैं 9.5 का फर्स्ट नंबर का सम और तीसरे नंबर का सम मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूं। बिल्कुल मेथड यही है, थोड़ा इंटीग्रेशन में थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी तो बहुत ही इजी है। ओके, अभी एक सम करते हैं। चलो बच्चों, अभी बात करते हैं 9.5 का पहला सम। बहुत ही बढ़िया है। यहां भी हमें क्या काम करना है, इसको बताना है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और इसका सॉल्यूशन भी हमें फाइंड करना है। चलो स्टार्ट करता हूं। यहां पे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। हियर x स्क्वायर प्लस xy इंटू dy is equal to x square plus y square dx। तो ये जो dx है उसको यहाँ पे डिनोमिनेटर में ले जाता हूं तो हो जाएगा dy by dx is equal to x square plus y square in denominator x square plus x into y, इसको मैं बोल देता हूं f of xy। जानते हो आप अब क्या करना है। अब यहां पे हमें x की जगह पे लैम्बडा x और y की जगह पे लैम्बडा y रखना है। तो नाउ f ऑफ लैम्बडा x लैम्बडा y इज इक्वल टू x की जगह पे लैम्बडा x, दैट मींस लैम्बडा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस लैम्बडा y लैम्बडा स्क्वायर y स्क्वायर इन डिनोमिनेटर x स्क्वायर मतलब लैम्बडा स्क्वायर x स्क्वायर और x इंटू y है मतलब लैम्बडा x इंटू लैम्बडा y। तो न्यूमेरेटर में देखो लैम्बडा स्क्वायर दोनों टर्म में है तो लैम्बडा स्क्वायर कॉमन फ्रॉम न्यूमेरेटर। इन डिनोमिनेटर देखो लैम्बडा स्क्वायर लैम्बडा इंटू लैम्बडा, डिनोमिनेटर में भी यहाँ पे लैम्बडा स्क्वायर है ही तो लैम्बडा स्क्वायर कॉमन एंड कैंसल। देन वी गेट हियर x स्क्वायर plus y square denominator x square plus xy is equal to same as f of xy। तो इसको मैं लिख सकता हूं लैम्बडा रेज़ टू 0 f of xy। तो मतलब क्या हुआ, जो फंक्शन है वो हो गया होमोजेनियस इक्वेशन विथ डिग्री 0। therefore f of xy is homogeneous function of degree 0। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो भी होमोजेनियस हो गया। therefore given differential equation is homogeneous differential equation। ओके, तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया और ये हमारी प्रूफ भी खत्म हो गई कि ये होमोजेनियस है, ये बताना है, ये भी हमने बता दिया। अब क्या, अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन हमें निकालना है। कैसे, देखो नाउ dy अपन dx इज इक्वल टू इन न्यूमेरेटर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इन डिनोमिनेटर x स्क्वायर प्लस x इंटू y। तो क्या करने वाले हैं, न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x स्क्वायर से डिवाइड कर लो। तो यहां पे x स्क्वायर से डिवाइड किया तो यहां पे हो जाएगा 1 प्लस y स्क्वायर अपन x स्क्वायर, दैट इज y अपन x होल इन डिनोमिनेटर x स्क्वायर डिवाइड बाय x, दैट इज 1 प्लस x into y डिवाइड बाय
एक्स स्क्वायर, तो 1 टाइम एक्स कट हो जाएगा तो बच जाएगा y अपन x। इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब आप जानते हो क्या करना है, y अपन x को कुछ ना कुछ एज्यूम करना है, तो एज्यूम कर लेते हैं y अपन x इज इक्वल टू v। ओके, सपोज y upon x equal to v, that means y is equal to x into v. Now taking derivative both sides with respect to x, then we get here dy upon dx is equal to derivative of x is 1, v as it is plus x as it is, derivative of v with respect to x dv by dx। अब ये सारी वैल्यू मतलब dy upon dx की वैल्यू और y अपन x की वैल्यू, दोनों वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखने वाले हैं। Therefore 1 implies dy by dx की जगह पे आ जाएगा v plus x into dv by dx is equal to, see numerator 1 plus y upon x that is v, means in numerator 1 plus v square, in denominator 1 plus simple variable separable method। Then first we take v opposite, then this side only x into dv by dx is equal to 1 plus v square, in denominator 1 plus v minus v। Now we take LCM, then x into dv by dx is equal to 1 plus v square minus v multiply with 1, then minus v, okay, or minus plus minus v square, denominator 1 plus v, see here v square cancel, then we get here x into dv by dx is equal to, in numerator 1 minus v, in denominator 1 plus v। Now see, from numerator I take minus common, from numerator minus is common, then v minus 1 upon v plus 1। Now x into dv upon dx is equal to what we get, minus v minus 1 upon v plus 1। अब सारी जो v की टर्म है उसको एक साइड पे, दूसरी साइड पे x वाली टर्म, मतलब वेरिएबल को हम सेपरेट करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे v plus 1 यहाँ न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो v plus 1 एंड डिनोमिनेटर में होगा v minus 1, और यहाँ पे dv is equal to minus as it is dx in numerator, x in denominator। Now taking integration both side, then integration v plus 1 upon v minus 1 dv is equal to minus integration dx upon x। तो इस साइड पे बहुत ही इजी इंटीग्रेशन है, 1 upon x का इंटीग्रेशन log मॉड्यूलस ऑफ x। यहाँ पे क्या करेंगे, v minus 1 डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में v plus 1 है, तो न्यूमरेटर में क्या करेंगे, 1 को ऐड करो और 1 सब्ट्रैक्ट, फर्स्ट सब्ट्रैक्ट 1, नाउ ऐड 1, बट यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव 1 है, दूसरा 1 ऐड करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा v minus 1 dv माइनस इंटीग्रेशन dx by x। अब चलो यहाँ पे क्या करेंगे, यहां से स्प्लिट कर दो, तो v minus 1 upon v minus 1 that is 1, therefore integration 1 plus 2 divided by v minus 1, okay, v minus 1 cancel, plus 2 upon v minus 1 dv is equal to minus integration dx by x। Now I take integration of 1, याद रखो बच्चों यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन, जल्दबाजी में x मत लिखिएगा,
integration with respect to v, then integration of 1 is v, plus 2 1 upon v minus 1, then log modulus of v minus 1 is equal to minus log x plus c1, ओके, प्लस हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट c1। अब देखो यहाँ पे क्या करने वाला हूं, v है उसको ऑपोजिट साइड पे ले जाना, ओके, तो यहाँ पे और 2 यहाँ पावर में चला जाएगा, तो हो जाएगा log v माइनस 1 होल स्क्वायर, ओके, और माइनस लॉग x है उसको इस साइड पे, तो प्लस लॉग मॉड्यूलस ऑफ x, v ऑपोजिट, देन c1 माइनस, नाउ आई पुट वैल्यू ऑफ v which is y upon x, लेकिन पहले एक स्टेप और लिख लेते हैं, log m plus log n, that means log m into n, v minus 1 whole square into x is equal to c1 minus x, c1 minus v, sorry, now I put v is equal to y upon x here, okay, y upon x, put here first v is equal to y upon x, then log y upon x minus 1 whole square into x is equal to c1 minus v, that is y upon x, okay, यहाँ पे LCM लेने वाला हूँ, तो हो जाएगा log मॉड्यूलस ब्रैकेट में y माइनस एक्स अपन x होल स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू c1 माइनस y। अब देखो क्या करने वाला हूं, लॉग फंक्शन को कैंसिल करता हूं, तो यहाँ पे लॉग अगर गायब हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा e रेज़ टू c1 माइनस y अपन x, therefore y minus x whole square in denominator simply x into x, और इस साइड पे हो जाएगा e रेज़ टू c1 माइनस y अपन x, one time x cancel, now this x take opposite, then multiply with numerator, then we get here y minus x whole square is equal to x, now see e raised to c1 minus y upon x, then I write as e raised to c1 into e raised to minus y upon x. Now I take e raised to c1 is equal to some new arbitrary constant, say capital C, okay, then y minus x whole square is equal to x into c into e raised to y minus x, where c is equal to e raised to c, and we know that 5 square is 25 and minus 5 square is also 25, then we write y minus x whole square as x minus 5 whole square here, therefore x minus y whole square is equal to c into x into e raised to minus y upon x, okay, which is our final general solution, which is जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। और पहले ही मैंने आपको बताया था कि 9.5 का जो तीसरा नंबर का सम है वो मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूं, 9.5 सम नंबर 3। बिल्कुल भी होमवर्क अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, ओके, बहुत ही इजी भी है, थोड़ा आइडिया लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन में, बाकी होमोजीनियस फंक्शन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो प्रूव करना है उसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ओके। लेक्चर यहाँ पे खत्म करता हूँ, बहुत ही बढ़िया समझाइए, खास ध्यान रखिएगा यहाँ से सिर्फ मैंने सिंप्लीफाई किया है और इंटीग्रेशन में भी इतना टफ नहीं है, सिर्फ 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है।